Hey everyone, I hope all you people are doing good. I am Amit this side, and in this video, we'll talk about SSB 60-day plan, in which we'll talk about psychology, GTO, and interview portion. So, in this particular video, this is part one where we'll be dealing with psychology. तो साइकोलॉजी कैसे प्रिपेयर करनी इसके बारे में डिस्कस करेंगे. व्हाट आर द थिंग्स यू शुड फोकस ऑन, व्हाट आर द थिंग्स यू शुड अवॉइड, कौन सी चीज़ें पिक करनी है, कौन सी चीज़ें पिक नहीं करनी है, हाउ टू प्रैक्टिस एंड व्हाट टू प्रैक्टिस स्पेसिफिकली. सब कुछ प्रैक्टिस नहीं करना होता है. डोंट प्रैक्टिस थीम्स कि ये आएगा तो ये लिख दूंगा, ये आएगा तो लिख दूंगा. दिस इज़ नॉट लाइक अ मैथ्स पेपर और एनी अदर पेपर. ये साइकोलॉजिकल पोर्शंस पे आपके ज़्यादा फोकस है, तो यू हैव टू राइट. यहाँ पे प्रैक्टिस क्या करना है वो वाला इंस्टेंस हम देखेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें प्रैक्टिस नहीं करनी. Okay, so a beautiful quote here to start with. Goal without a plan is just a wish. So if you are wishing for something, then and if you don't have any plan, तो वो इस वाला सेक्शन हो जाएगा. But if you want something, you should have a plan and you should execute it daily, because consistency के terms में you will win with every other thing जो भी आपके पास है, जो भी आपका goal है, right? So let's plan it out. So before that, let me tell you something about myself and what I do, what I had done in the past, so that आपके लिए थोड़ा easy हो resemble करना और relate करना actually में कि who I am to guide all this. ठीक है. So I have also been in this journey from last 5-6 years. ठीक है. I have exhausted all my attempts as of now, and since when I start guiding people, I started taking online classes, है ना. I started taking SSB classes, and from that onwards I have given multiple recommendations. Most of my candidates are into academies now. Some have passed the academies also. They are currently serving into organizations, Air Force, Navy, Army, in all the three organizations, and also in Coast Guard recently. एंड यू कैन चेक ऑल दीज थिंग्स. आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आ सकते हो. वहाँ पे आपको बाकी सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि हाउ मेनी रिकमेंडेशंस आई हैव गिवन, व्हाट आर द प्रोसेस, व्हाट आर द थिंग्स, व्हाट आर द. And obviously, I am not DIPR trained. This is very obvious. I am not DIPR trained. I was one of the candidates who was trying for SSB एंड सक्सेसफुली बहुत सारी चीज़ें मैं सीख पाया, तो वो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ. ठीक है. और अदर चीज़ ये है कि आई हैव रेड अबाउट मैनी थिंग्स, जिसके बाद मैं ये चीज़ें सिखा पा रहा हूँ. नॉट जस्ट फ्रॉम द प्रोसेस इट सेल्फ. आई हैव रेड साइकोलॉजी बुक्स, आई हैव रेड MS साइकोलॉजी वाली बुक्स, है ना. आई हैव रेड वेरियस बुक्स रिटन by various assessors. I have met various assessors, various psychologists, various GTOs. As I have a background of defense, so it was really easy for me to connect with the people who was working and non-working at that moment of time. So that really helped me, and from all those experiences of past 5-6 years, I am now helping people. So I think I am the candidate, or I think I am the person, or I think I am the guide who can गिव यू अ पाथ जहाँ पे आप चीज़ें फॉलो अप कर सको. एंड आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई सेल्फ. लेट्स सी हाउ कॉन्फिडेंट यू आर, whether you are able to make it or not. I have given this guidance to all around various students and most of them have make it, है ना. तो बहुत सारे लोगों ने कर लिया, आप भी कर सकते हो. लेट्स स्टार्ट दिस. सो पहली क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें देखनी है, तो वी हैव टू प्रिपेयर 3 सेक्शंस: साइकोलॉजी, इंटरव्यू एंड ग्राउंड टास्क. इन दिस वीडियो, एज आई ऑलरेडी मेंशन, आई विल टॉक अबाउट साइकोलॉजी. तो साइकोलॉजी के लिए हम यहाँ पे 20 से 25 दिन रख रहे हैं मोटा मोटा. सो वी आर हैविंग 25 डेज, बिकॉज वी आर टारगेटिंग 60 डेज, यानी कि 2 मंथ्स फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स. जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, मे बी 1 मई, 5 मई, 10 मई, 12 मई, जैन, जुलाई, अगस्त, वट एवर मंथ यू आर सीइंग दिस वीडियो. एंड इफ़ यू हैव 60, 70, 90 odd days for your SSB, start your preparation from now onwards. Do not start your preparation 15 days, 5 days, 10 days before SSB. मे बी अगर आप रिपीटर हो तो यू नो मोस्ट ऑफ द थिंग्स, तो इट माइट हेल्प यू इन दैट सिनेरियो. बट आई विल प्रेफर कि आप अर्ली प्रिपरेशन स्टार्ट करो. दिस विल हेल्प यू इफ़ यू वांट टू गेट रिकमेंडेड इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट, राइट. देन तो इसमें पार्ट्स कौन कौन से हैं, लेट्स नो अबाउट दैट. देयर विल बी अ टैट, देयर विल बी अ वैट, देयर विल बी एन SRT सेक्शन, है ना, एंड देयर विल बी एन SD सेक्शन. 4 सेक्शंस हैं आपके पास. यू कैन जस्ट गो थ्रू दैट. So first and basic thing what you have to do in this process of learning, in this process of starting your psychology, know your psychology, who you are, what kind of person you are. So first thing, write down everything you know about yourself. Everything: your positives, your negatives, your weaknesses, your strengths, your likes, your dislikes, why you like that, why you do not like that, when you become emotional, when you do not become emotional, what are the rational things you go on, how many practical decisions you have taken, why you have taken such an emotional decision, if you have ever in any period of time. Know each and everything. सो इन माई कोर्सेज ऑल्सो आई फोकस ऑन कि मैं कैंडिडेट के बारे में एटलीस्ट उससे ज़्यादा जान पाऊँ, है ना.
कम से कम उतना जान पाऊँ जितना उसको आइडिया है अपने बारे में, और उससे बेटर मैं एनालाइज कर पाऊँ. तो हेयर one of the most important things that will come into play is the analysis of your own self. You should know your own self. If you are not knowing about yourself, then it might not help you in your interview also. Every other thing is related. If you know about yourself, then you can write things. If you know about yourself, then you can talk about yourself in the interview room. If you know about yourself, then you know what are your strengths and weaknesses, and you can imply that in the GTO ground itself. So it's start with knowing about yourself. So yourself is the key, यानी कि you are the answer of every other question. So start focusing on yourself, start focusing on कि who you are, what are the your weakness, what are the strengths, as जो भी हमने अभी बात करी. सेकेंड इज दैट सेम थिंग, नो योर सेल्फ बेटर. जानो कि कैसे तुम रिएक्ट करते हो, क्या नहीं करते हो. ऑब्जर्वेशन, दिस इज द थर्ड थिंग विच यू फोकस ऑन. ऑब्जर्वेशन, किसको ऑब्जर्व करना है? सबसे पहले तो खुद को ऑब्जर्व करना है कि आप ऐसा करते क्यों, आप वैसा क्यों करते हो, आप इतने बजे क्यों उठते हो, आप उतने बजे क्यों नहीं उठते हो, आप दौड़ने जाते हो नहीं जाते हो, क्यों जाते हो, क्या रीज़न है, ये एक्टिविटी क्यों करी, वो एक्टिविटी क्यों नहीं करी. सो आई विल से स्पाई ऑन योर सेल्फ. इन माई बैचेस व्हेन आई टीच, आई डू गिव अ होमवर्क टू स्टूडेंट्स कि आप स्पाइंग करो अपने ऊपर, है ना. हाउ डू यू डू दैट कि आप डेली एनालिसिस करो कि व्हाट यू आर डूइंग थ्रू आउट द डे. फॉर एग्जांपल, यू वेक अप एट 8 AM. आफ्टर दैट व्हाट यू डिड, आफ्टर दैट आपने 1 घंटे मोबाइल चलाया. नाउ दैट इज़ द पोर्शन यू हैव टू राइट कि हाँ यार 1 घंटे, और मैं कब से कर रहा हूँ, मैं 7 दिन 8 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन से लगातार किए जा रहा हूँ. या फिर आप उठते हो तो आप जाते हो एक पोर्शन ऑफ टाइम में एक्सरसाइज करने, 45 मिनट 30 मिनट 1.5 आवर, और आप देखते हो कि एक्सरसाइज करने के बाद आप आके आराम कर रहे हो. दैट इज़ ऑल्सो द पार्ट यू हैव टू एस्पाई ऑन. आपको ये देखना है कि कितना टाइम आप कहाँ यूटिलाइज कर रहे हो और आप ऐसा क्यों कर रहे हो. द क्यों इज़ ऑल्सो द रीज़न, है ना, कि भाई जो रीज़न वाला पोर्शन है कि भाई क्यों क्यों किया जा रहा है ऐसा, मैं ऐसा क्यों करता हूँ. दैट इज़ द पोर्शन. See how your emotion functions. Write down all the emotional activity, emotional situations you have faced in your life till now. Maybe 2 3 4 साल का लिखो पिछले, because that has formed your psychology, the core of your psychology, है ना. अगर आप स्ट्रेस में पसीना पसीना होने लगते हो, आपके हाथ पैर कांपने लगते हैं, या फिर आप डर जाते हो किसी फाइट एंड फ्लाइट मोड वाली सिचुएशन में, ऑल तो हमेशा फाइट नहीं करना होता, बट स्टिल जहाँ जहाँ पे आपका स्टैंड लेना होता है वहाँ स्टैंड नहीं ले पाते हो. ऐसी सिचुएशंस आपको पता होना चाहिए. So see how your emotions function. See what you do when there is an emotional situation in front of you. Next is how you react to situation. Write down all the situation and how you are reacting or responding. So whether you are reacting or responding, response will be preferred in SSB, reaction will not be. तो आपको इसमें पता होना चाहिए कि रिएक्शन से कोई जब बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, बट आपको वहाँ पे क्या करना होगा, रिस्पॉन्स करना होगा. सो जैसे कि आपके फादर ने आपको सुबह डांटा, तो आपने क्या रिस्पॉन्स किया. आपके पास में कोई एक टफ सिचुएशन आई, तो आपने उसमें कैसे रिस्पॉन्स किया, आपने क्या किया उस टाइम पे. ये तो जब तक आप डेली लाइफ को ऑब्जर्व नहीं करोगे तब तक आप जान नहीं पाओगे. तो की इज़ द ऑब्जर्वेशन, है ना. कि ऑब्जर्वेशन ही सबसे बड़ा फैक्टर है जो आपको करना है अपनी डेली लाइफ में. एनालाइज योर सेल्फ, आप कैसे रिएक्ट करते हो, क्यों रिएक्ट करते हो, क्यों आपने उस टाइम वो करा, क्यों आपने उस टाइम वो नहीं करा. दीज आर द सिचुएशन, बिकॉज देन यू विल बी एबल टू नो योर सेल्फ एंड योर वीकनेस एंड स्ट्रेंथ. तभी तो काम कर पाओगे. अभी तो कुछ पता ही नहीं कि क्या स्ट्रेंथ क्या वीकनेस, तो हाउ विल यू वर्क ऑन दैट. आई होप यू आर गेटिंग दैट. नेक्स्ट है नो वॉट यू थिंक ऑफ योर सेल्फ एंड अदर्स. सबसे पहले अपने बारे में आप क्या सोचते हो, पॉजिटिव नेगेटिव, राइट ऑन एवरीथिंग. मैं बार बार उसी चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ. एंड अदर्स के बारे में, फैमिली के बारे में क्या सोचते हो, फ्रेंड्स के बारे में क्या सोचते हो, बहन भाई के बारे में क्या सोचते हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बारे में क्या सोचते हो, कलीग्स के बारे में सब क्या सोचते हो. राइट डाउन एवरी थिंग विच यू थिंक अबाउट योर सेल्फ एंड द अदर पीपल इन योर लाइफ. दैट इज़ वॉट. इतने सारे फैक्ट्स, डेटास, या फिर मैं कहूँ कि जो लर्निंग्स हैं, ये इसको लिखने के बाद आप सीखोगे तो आप अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट रहोगे कि यार मुझे ये चीज़ बहुत अच्छे से आती है, ये वाली चीज़ मुझे काम आउट करनी है. मतलब देखनी है कि मैं ये कैसे करूँगा, ये कैसे, ये सीखना है मुझे. तब आप उसको सीख पाओगे बेहतर तरीके से, और जो आपको आता है वो आप इम्प्रूव कर पाओगे और बेटर कर पाओगे. एंड दैट्स हाउ व्हेन यू गो इनटू द एसएसबी यू विल नॉट हैव दैट स्यूडो कॉन्फिडेंस, यू विल हैव कॉन्फिडेंस फ्रॉम इनसाइड बिकॉज यू नो हु यू आर. नेक्स्ट, सो लेट्स टॉक अबाउट द टेस्ट. जो टेस्ट होते हैं थोड़ा सा ब्रीफ आउटलाइन में दे देता हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया रहे. तो थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट होता है टैट में. 30 सेकेंड्स एक पिक्चर के लिए होता है, एंड देन आफ्टर दैट 4 मिनट होता है स्टोरी लिखने के लिए. तो बेसिक 12 स्लाइड्स दिखाई जाती हैं जिसमें 11 पिक्चर्स होती हैं, या मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पे लिख दिया मैंने, है ना. आपको 12 स्टोरीज लिखनी होती हैं. एक ब्लैंक स्टोरी होती है, 11 स्टिमुलस होते हैं, यानी कि 11 पिक्चर्स आपको दिखाई जाती हैं, और एक में ब्लैंक स्लाइड होती है. तो 11 की 11 स्टोरीज और एक ब्लैंक स्टोरी लिखनी होती है.
डिफरेंट स्ट्रेस लेवल की स्टोरीज दिखाई जाती हैं, पिक्चर्स दिखाई जाती हैं एक्चुअली। किसी में हो सकता है कोई बहुत परेशान दिख रहा हो, किसी में कोई एक्सीडेंट दिख रहा हो, किसी में कोई डेड बॉडी पड़ी हो, किसी में कोई किसी के ऊपर हमला कर रहा हो, किसी में बस दो लोग बैठ के बातें कर रहे हो, किसी में कोई बहुत खुश हो, किसी में कोई छुप के कुछ देख रहा हो। ऑल दीज सिचुएशंस विल बी इन फ्रंट ऑफ यू एंड वॉट यू राइट दैट विल बी असेस्ड बाय द असेसर कि हाँ यार ये ऐसे करना है, इसने ऐसा लिखा है, इसका ये साइकोलॉजी है। हाउ टू प्रिपेयर। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट्स प्रैक्टिस करनी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट्स पे। हाउ टू ऑर्गेनाइज माई थॉट्स। डू नॉट प्रैक्टिस थीम्स, डू नॉट प्रैक्टिस कि ये आएगा तो ये लिख दूंगा, नहीं 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 नहीं, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। नहीं, ओनली प्रैक्टिस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ योर थॉट्स कि पहले क्या लिखूंगा फिर क्या लिखूंगा, मेरे दिमाग में ये आइडिया आ रहा है, इसको कैसे एग्जीक्यूट करूंगा। तो यू हैव टू राइट द एग्जीक्यूशन ऑफ थॉट्स, यू हैव नॉट टू राइट द थीम्स। यू हैव मतलब प्रैक्टिस थीम्स की नहीं करना कि 100 थीम्स प्रैक्टिस कर ली उसी में से कोई चिपका दूंगा। दिस विल नॉट बी गोइंग इन योर फेवर, है ना, ट्रस्ट मी ऑन दिस। तो आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट्स। इन माई बैचेज ऑल्सो फोकस ऑन दिस थिंग। और मैं स्टूडेंट्स को समझाता हूँ कि जब भी आप स्टोरी लिख रहे हो ना, डू नॉट प्रैक्टिस थीम्स। थीम्स तो आ जाएंगे, आइडियाज़ विल कम। प्रैक्टिस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट्स, अ स्मॉल व्हाट वी से जनरल टर्म्स में, लो लेवल आइडिया, हाई लेवल आइडिया, मीडियम लेवल आइडिया, ये जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, इसमें अगर एक नॉर्मल आइडिया भी आप पिक कर रहे हो और उस पर अच्छी स्टोरी, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट्स के साथ लिख रहे हो, दैट विल गिव यू गुड मार्क्स and it is about marks if you know. राइट योर डेली फीलिंग्स एंड इमोशन, दिस विल इंक्रीज योर ऑब्जर्वेशन पावर एंड एक्सप्रेशन पावर, है ना। अपना डेली जर्नलिंग करो, डेली जर्नलिंग करो, डेली डायरी एंट्री करो। जिससे क्या होगा कि आपकी जो पावर ऑफ एक्सप्रेशन है वो इंप्रूव होगी। व्हाट यू आर फीलिंग टुडे, व्हाट यू फेल्ट टुडे, व्हाट यू enjoyed in that party, what you felt when you were not given the particular task जिसके लिए आप एस्पायर कर रहे थे पिछले 2-3 महीने से, समथिंग लाइक दैट, वॉट एवर इट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ। स्टार्ट ऑब्जर्विंग मोर। सो पहले पे भी फोकस मैंने करा था ऑब्जर्वेशन पे, यहाँ पे भी आपको ऑब्जर्वेशन पे ही फोकस करना। आप 100 प्रोफेशंस लिख लो। कभी कभी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेट कन्फ्यूज कि यार मेरे को ना समझ में नहीं आ रहा है इसका क्या प्रोफेशन बनाऊँ। तो एक काम करो, 100 प्रोफेशंस लिख लो। कैसे लिखोगे, आप अपने घर से स्टार्ट करो। हो सकता है पापा पुलिस में हो सकता है पापा डिफेंस में हो सकता है पापा मैनेजर हो सकता है पापा शॉपकीपर हो, एनीथिंग that is the profession. And also know about that profession. What does an IAS officer do, what does an IPS officer do, what does an SDM do, ASDM do। और उसके बाद फिर दूध वाला क्या करता है, चाय वाला क्या करता है, मैनेजर क्या करता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या करता है, आर्किटेक्ट और सिविल इंजीनियर के बीच का क्या डिफरेंस है। नो ऑल दिस थिंग्स, तभी तो तुम बेटर स्टोरी लिख पाओगे। अदरवाइज क्या लिखोगे, तुम्हें आइडिया ही नहीं है कौन सा प्रोफेशन क्या करता है, तुम्हें पता ही नहीं है, तुम हवा में लिखोगे। हवा में लिखी हुई स्टोरी कंसिडर की नहीं जाएगी, तुम्हारे लॉजिक्स को मैच नहीं कर पाएगा असेसर कि यार ये क्या लिख रहा है, समझ रहे हो। नेक्स्ट, डू रीड न्यूज़पेपर टू इंक्रीज योर जनरल अवेयरनेस पोर्शन। जनरल अवेयरनेस पोर्शन जितना बेहतर रहेगा उतनी अच्छी स्टोरीज लिख पाओगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट करंट अफेयर्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट करंट अफेयर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल अवेयरनेस। इंप्रूव योर हैंड राइटिंग ऑल्सो। हाउ टू राइट अ टैट स्टोरी, सिंपल एज इट इज़। तो सबसे पहले टैट स्टोरी। अच्छा, जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जनरल अवेयरनेस मतलब कि एक एम्प्लॉय कैसे काम करता है, एक ऑफिसर कैसे काम करता है, व्हाट आर द स्टेप्स ही टेक टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, दैट इज़ अ जनरल अवेयरनेस। तो कोई भी एक सैम्पल पिक्चर लो इंटरनेट से, उसको बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करो। उसमें क्या क्या देखना है, नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स देखने हैं, बैकग्राउंड देखना है, कौन से कपड़े उन्होंने पहने हैं वो देखने हैं, जूते पहने हैं, बूट्स पहने हैं वो देखने हैं। पे अटेंशन टू द हैंड्स कि उसके हाथ में कुछ है तो नहीं, क्योंकि उससे भी स्टोरी का एंगल पूरी तरह से बदल जाएगा। सपोज़ करो एक हाथ में, एक स्टोरी पिक्चर में देखा कि एक हाथ में चाकू है, दूसरे पिक्चर में देखा एक हाथ में टॉर्च है, बदल गया एंगल, टोटली चेंज्ड। दैट इज़ हाउ इट टर्न। सेलेक्ट द थीम, एक थीम, एक आइडिया पिक करो कि ये जो तुम्हें दिख रहा है पिक्चर से, अच्छा मुझे समझ में आ रहा है कि ओ यहाँ पे घर पे कोई गेस्ट आए हैं, है ना। अब उसके बाद तो गेस्ट आए हैं, अब उनको सर्व करना है, उनको जो भी वेलकम करना है उनका, तो ये हीरो का एजेंडा हो गया, कैसे करेगा ये आपकी स्टोरी हो गई। राइट डाउन थिंग्स इन डिटेल। उन्होंने सबसे पहले उनको बिठाया, थोड़े बहुत हाफ एंड बेसिक इंट्रोडक्शन मतलब बातचीत करी, हाल चाल लिया, उसके बाद फिर उनको सर्व किया ठंडा पानी चाय वॉट एवर नॉट। फिर अपने जो आपके गेस्ट आए हैं उनके साथ कंफर्टेबल होके या फिर उनकी हेल्प लेके या फिर उन्होंने आपकी हेल्प करी खाना बनाने में, प्रिपेयर करने में, वॉट नॉट, समथिंग समथिंग लाइक दैट, जैसे आप करते हो, सिंपल। नेक्स्ट इज़ हाउ टू गेट आइडियाज़। बहुत सारे लोग आइडियाज़ में स्टक कर जाते हैं कि यार मुझे आइडियाज़ नहीं आ रहे।
आई एम नॉट एबल टू गेट आइडियाज़, मैं कैसे आइडियाज़ लेके आऊँ? तो आइडियाज़ लाने का सिंपल तरीका है, सबसे पहले तो आपको पिक्चर देख के बहुत क्लियर कुछ चीज़ें आ जाती हैं दिमाग में, उसके ऊपर लिखो स्टोरी। प्रैक्टिस दैट, प्रैक्टिस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट्स, जैसे कि बात करी। हाउ टू गेट आइडियाज़? न्यूज़पेपर पढ़िए, बुक्स पढ़िए, योर इमेजिनेशन विल इंक्रीज। न्यूज़पेपर बुक्स पढ़ने से आप इंस्टेंसेस की जो लिखी हुई बातें होती हैं उनको देख पाते हो, कि यार उनको इमेजिन कर पाते हो, उनको फॉर्म कर पाते हो। दिस हेल्प्स यू टू इंक्रीज योर इमेजिनेशन, कि अच्छा इसमें ऐसा लिखा है कि दिस पर्सन वॉज टॉकिंग टू दिस पर्सन एंड दिस हैपेंड, एंड यू इमेजिन दिस सिनेरियो इन योर हेड। दैट्स हाउ योर इमेजिनेशन improves. Be aware about the surroundings, that we talk about general awareness. Know about the hero and profession used, already told you. Clear understanding of the profession will help you to write a better actions. If I know what a civil engineer do, then I'll be able to write a good story. If I know what an architect do, then it will be really easy for me to write the story. That's what I'm talking about. Your presentation skills, that means ki how good your English is, because if your English is good, you will be able to put your thoughts from your head onto the paper. आप अपने थॉट्स दिमाग से निकाल के पेपर पे लिख पाओगे, एंड दैट विल बी रियली ईजी फॉर यू. बट if you are struggling in organizing your thoughts, and if you are not able to convert this thought into English and write it out on the paper, then you may lose some marks on power of expression. You will not give the exact idea what was in your head and what you wanted to convey to the assessor. You will lose out some portion ना, ये नहीं होना चाहिए. Improve English and communication, that is the last part. Talk without people, read books, read newspaper, read English newspaper suggestively. This will help you to form a vocab, a good vocab, and a better way you can write your story. Presentation skills will be improved a lot. Okay, you will be able to put your ideas from head to the paper very easily. So this is a sample picture just for your practice. आप इस पे स्टोरी लिखो, यू कैन राइट स्टोरी ऑन दिस, यू कैन सेंड इट टू मी ऑन माई व्हाट्सएप 8808344475. आई विल रिव्यू इट फॉर यू वॉट यू हैव रिटन, वेयर आर यू लैकिंग, है ना. आई विल रिप्लाई थ्रू एन ऑडियो मोड, तो आपको काफ़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. ट्रस्ट मी ऑन दिस, इफ़ यू फॉलो वॉट एवर आई हैव टोल्ड टिल नाउ, है ना, ट्रस्ट मी ऑन दिस, you will get good marks in psychology. I can bet, I can guarantee, if you follow all these, you will get good marks in psychology. Points to remember. Story हमेशा past tense में होनी चाहिए. You should also write a proper introduction of the hero. Always remember, you have to write what led to the situation, what is shown in the picture. Do not describe the picture कि ऐसा एक लड़का खड़ा था, उसने ये कपड़ा पहना था. Do not do that. Do not describe the picture. Write what is currently happening in the picture. These are the instructions which will be told in the SSB, and if you have ever gone to the SSB, you will know कि हाँ ये सारी चीज़ें तो बताई जाती हैं. Hero should have a goal, and hero should take certain steps to achieve those goals, and that is what you have to write in a story. Do not practice on themes, practice on organization of thoughts. I am repeating it again and again and again and again. If you are following this, trust me on this, you will get really good marks in your psychology, and you will pass psychology tests with ease. Next, now there is a word association test. The sentence itself, or I said the definition itself, says it's an association test. What test? Association test. Total time आपको मिलेगा 15 minutes. You will have 60 wet words, so 15 seconds I think for each wet word, है ना. In the test, you have to write the association of your thoughts, of your imagination, and preferably emotion, observation, application, and values. Do not write sentences based on current affairs. That will not fetch you good marks, or that will not be counted for evaluation, है ना. Sentences should be telling something about you, who you are, what you think, what are your values, what are your observation, what are your applications to them, है ना. ये whenever you see a negative word, write a solution of that word. That will really help for you. Avoid using phrases and idioms. Do not use phrases and idioms, quotations given by various philosophers, various people who have done great in their life. Do not use that. Don't get advices. Don't give advices. For example, we should do that, we should save society, we should plant trees, we should save water. Do not give that. This is not helping. This is not helping in any way. Write down about your thoughts, write down about your values.
So here what we required, better English. If we are good at English, we will be able to write good VAT words. Or next thing, practice. I don't know what assessors are telling, I don't know, but what I have done, what I teach to the students, and I have got results also, and pretty much better than all those coachings जहाँ पे just one way communication हो रहा है ना. So whenever I teach, I interact with the students one to one, and मेरे बैचेस में ज़्यादा बच्चे थोड़ी होते हैं. I only take 5 to 6 students in a particular batch, and that really helps to know more about themselves, know more about कि हाँ कैसे उनका क्या पोर्शन लैक कर रहा है. तब तो आपको पता चलेगा ना कि वेयर यू हैव टू इम्प्रूव. जस्ट गोइंग इन द SSB कि हाँ लक बेस्ड है एवरीथिंग इन एवरीथिंग, तो फिर क्या ही होगा. सो वॉट यू हैव टू प्रैक्टिस, एसोसिएशन. हेयर यू हैव टू प्रैक्टिस एसोसिएटिव सेंटेंस फॉर्मेशन, है ना. एक वर्ड आया डार्क. नाउ you may have this association of dark to night, you may have this association of dark maybe chocolate, you may have this association of dark to maybe any other thing, maybe studies also, maybe you prefer to study at night, so you associated with night and then associated with study. You can write sentences also related to that. That is your associative sentence. That's how we associate. For example, if I say love, you might associate it to your friends, your family, your sports, है ना, your girlfriend, your boyfriend, your favorite subject also, and your favorite teacher also. You might associate it different things. उस टाइम पे कौन सा आ रहा है, that will what you write, है ना. So you can send few of the words on my WhatsApp number I have given here, ठीक है. और मैंने पिक्चर्स के लिए भी व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया हुआ था. सो यू कैन सिंपली सेंड योर स्टोरीज ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर और सेंड योर वैट वर्ड्स ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर. आई कैन टेल यू वेयर आर यू लैकिंग, है ना, कहाँ से आप इम्प्रूव कर सकते हो. यहाँ पे सिंपल प्रैक्टिस से आप अपने वैट वर्ड्स को इम्प्रूव कर सकते हो. सिंपल फिनोमेना, यू कैन प्रैक्टिस, यू कैन इम्प्रूव. तो मैं जो प्रैक्टिस करने के लिए बता रहा हूँ ना, उस पर ध्यान देना कि क्या प्रैक्टिस करना है. Here also you will practice ki how to form associative sentence, not to practice sentence formation. Here you will practice associative sentence formation. I hope it helps. Next, SRT. So in the first section where I told कि आपको देखना है, you have to analyze yourself, you have to see through yourself कि how I am reacting to the situation, how emotional I am, how practical I am. I have told ना previous वाले में, that is वो चीज़ यहाँ पे काम आएगी बहुत ज़्यादा. There will be certain situations, you have to answer them. So you will be having 30 minutes and you will be having 60 situations and you have to answer them accordingly. For example, I'll read out a situation for you. You were returning from midnight movie show and you saw two people fighting with each other on the road preferably. What will you do? Now, when you are writing the solution of, या फिर when you are writing the response actually of this reaction test, what you have to do, use commas, make it as short as you can. Suppose if you can relate, whenever you do a text message, not WhatsApp message, there is a certain limit of words, maybe 180 words, 100 words, 50 words, 200 words, है ना. You make it as short as you can. Just make it like that. For example, if a person is going to hospital, if a person is going to college and he saw some accident, so what will he do? Save the injured person ना, simple. एक तो ये हो गया. But how will you write that? Rush to the spot, tie handkerchief on the wound, take an auto, reach hospital. ये सब पे कॉमा कॉमा रहेगा. Reach hospital, inform family member, and then do the formalities. और फिर FIR वगैरह वो जो भी सारे सेक्शन है या पुलिस को इन्फॉर्म करना, यू विल डू. तो यूज़ कॉमर्स एंड ऑल्सो डो नॉट फॉरगेट यू हैव टू गो टू द कॉलेज इटसेल्फ, एड एट टू द एंड, है ना. So that's how you practice SRTs. Write as much as short form you can, but detailed short form. Use less words, convey more. Less words, है ना, convey more. Use less words, convey more. And that is the core philosophy of performing in SSB. Less words, convey more. Whether it's interview, whether it's GTO, whether it's psychology. It is one of the most easiest I'll say in all those 4 tests, है ना. तो you can practice. इसका आंसर भेजिएगा मुझे आप.
है ना, ये जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है. इफ़ यू आर अ सीरियस कैंडिडेट, इफ़ यू आर नॉट हियर टू एंजॉय द वीडियो, सिंपली सेंड मी द आंसर ऑफ दिस. आई विल लुक अप टू दिस. Now the last test, self description test. It will be of 15 minutes. You will get 15 minutes time, है ना. So what you have to write? You have to write what your parents think about you. आपके मम्मी पापा आपके बारे में क्या सोचते हैं. What your friend colleagues, what your teacher boss, what you think about yourself, what you want to become and how you want to, like what you want to improve. I have written friends and colleagues. So colleagues for those who are working. I have written teacher or boss for those who are working, and teacher for those who are not working. Right? In SD, in self description, you have to write through applications. I'll say through examples. For example, my parents believe me I'm a person, or my parents believe me I'm a child, है ना. ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे लिखना वैसे लिखो. So my parents believe me I'm a person who holds household chores responsibilities. या आप sometimes na, when I have to improve my SD, I'll not use the word responsibility. How will I write? I will write in this way. My parents believe that I am a person who helps in household chores, pay out the bills, book cylinders, gas cylinders specifically, take out grandfather or grandmother for medical checkups, है ना. तो अब इन सारे इंस्टेंसेस से what I have told, I have told how responsible I am. So I'm not using the word responsible, keyword responsible. I'm not using it. What I'm doing, I'm stating the instances where I'm responsible, and that's how you have to write in every other section. So you can choose 2 to 3 responses, है ना, depending upon where you are writing. So as a parent, बच्चे को कैसे देखते हैं? रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, पढ़ने में अच्छा होना चाहिए, घर का काम करना चाहिए, या व्हाट नॉट, जिस भी तरीके से आपके पेरेंट्स आपको देखते हो, राइट. यू हैव टू राइट सेम थिंग हेयर. दैट विल एक्चुअली हेल्प यू. सो SD की प्रिपरेशन करने से आपको ये करना है इसी तरीके से. पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है, ध्यान रहे. एक SD यानी कि एक पैराग्राफ में. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर राइटिंग वॉट योर पेरेंट्स थिंक अबाउट यू, सिंपल एज इट इज़, यू हैव टू राइट इन 8 to 9 लाइन्स, है ना. समझ गए होगे. फर्स्ट, राइट योर ओरिजिनल थाट्स, वॉट एवर इट्स कमिंग इन योर माइंड, एंड देन मोल्ड इट टू द नीड्स ऑफ SSB. नीड्स ऑफ SSB मतलब पैराग्राफ में लिखो, 8 से 9 लाइन में लिखो, है ना. वहाँ पे तो टाइम लिमिट है ना 15 मिनट्स का. तो यू हैव टू राइट, सपोज इफ़ यू आर राइटिंग 9 लाइन्स फॉर ईच पैराग्राफ, देन विल बी 5 पैराग्राफ, सो इट विल बी अप्रॉक्सिमेटली 45 लाइन्स. सो यू हैव टू राइट 45 लाइन्स इन 15 मिनट्स. So that's how you can write. Practice multiple times before going to SSB. What you have to practice? Writing the SD in the given time. If you are not able to write SD in given time, you will miss out. So anything which you will miss out will not be treated as in a good limelight. Obviously there are candidates who have missed few VATs, who have missed few SRTs, who have missed a portion of their SD and they got recommended. Obviously. But whenever there is something, do you want to repeat the same thing? Why you want to repeat the same thing? You do better, na? Simple as it is. If somebody has committed a mistake and still got through, so do you want to commit the same mistake? It's not like that. So यहाँ पे आप improve कर सकते हो. So improve. Try to attempt all the SRTs. Try to attempt all the VAT section. Try to attempt all the TAT stories. Try to do this SD in the limited period of time. Daily task आप क्या करोगे 25 days तक? 1 story, 5 VAT words, 5 SRTs, है ना. So this is my WhatsApp number. For any doubt, for any query, you can contact me on this, है ना. आप इस पर मुझसे बात कर सकते हो. एंड आपको बैचेस ज्वाइन करने हैं तो आप बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हो. सारी डिटेल्स व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी. नाउ द लास्ट मैसेज फॉर यू. आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल. ऑल द थिंग्स विच आई हैव टोल्ड इन दिस वीडियो, है ना. तो ये तो जस्ट ग्लिम्स है, ये तो बहुत एकदम छोटे पोर्शन में मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बताई हैं ताकि आप अंडरस्टैंड कर सको सिनेरियो. I hope it has helped you. It has helped you now to start practicing, start doing it, and I can guarantee you will get good marks in your psychology test. So next video में हम interview की बात करेंगे. Till then, bye bye, take care, and keep practicing, keep preparing. Do join the Telegram group. Till then, Jai Hind.